आज के इस वीडियो में हम देखेंगे F9 पेपर के सारे टॉपिक्स को हम डील करेंगे। जैसे कि इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट में कुछ जो टॉपिक्स हैं हम पहले उसको आज डील करेंगे, उसके बाद हम आगे की यूनिट्स की बात करेंगे। ये पेपर हमारा 50 नंबर का होता है, जिसमें कि 15 इंटरनल मार्क्स होते हैं और 35 जो हम एग्ज़ाम में लिखेंगे। ये 35 नंबर की प्रिपरेशन हम करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का वीडियो बनाने के लिए मुझे 2-3 लोगों ने बोला, इसलिए मैं अलग से इसके सारे टॉपिक्स डील कर रही हूँ, वरना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा करके इसका वीडियो कंप्लीट करती। तो यूनिट 1 में हम देख लेते हैं। इसमें हमारा 4 टॉपिक है। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश अराउंड अस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, इंग्लिश में क्या क्या है, एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद है प्रोफिशिएंसी वर्सेस अचीवमेंट इन इंग्लिश। ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चंस में डिस्कस कर दिए थे, पर हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे। हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। आप कैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में आया हुआ, ये ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक यही है, तो हम पहले इसे डील कर लेते हैं। Globalization refers to the ever-expanding connectivity, integration and interdependence of economic, social, technological, cultural, political and ecological spheres across ground-level activities in the ever-increasing globalized society. Empowered individuals communicate across cultural and national boundaries as the citizens of the world. There is access to new technologies that provide them so many ways to reinterpret, appropriate and negotiate mass distributed text in multiple forms। जैसे कि इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हम इंग्लिश को एज ए ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हर जगह इंग्लिश को यूज़ करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों से बात करने के लिए, या फिर हमें कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है उसके लिए भी हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पैरा है, these global interactions force a heightened sensitivity to audiences with different interpretive position, necessities and examinations of underlying cultural assumptions and beliefs that frame intercultural communication। इसे हम intercultural communications के लिए भी इंग्लिश का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कोई और लैंग्वेज नहीं आती है तो हम इंग्लिश का यूज़ करके उनसे बात कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। As English educators, our objectives is to equip students with knowledge of global literacy, also create critical awareness of how globalization defines and positions their languages, symbols, identities, communities and future. The teachers of English need to envision of the subjects of English within the context of global mass mediation, multimodal communications, that is communications that employs multiple mode of expressions, migratory population जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, transnational economies। Every educational system aims to bring about desirable changes in the students. In order to bring about these changes, the institutions arrange for the learning experiences. The success of learning can be judged in terms of the changes brought about by this experience, and this is a learning experience. Thanks to globalization, it necessitates the learning of a language which is international। Globalization से हम इसको थैंक्स बोलते हैं क्योंकि ये हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन होता है उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, जिसे हम एक देश से दूसरे देश कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। Undoubtedly, English has become a world language rather than the language of only English-speaking countries. Reason being, the number of people who use English as a means of communication exceeds much more than the number of people who speak it as their mother tongue. The direct and indirect influence of English language in India has been for more than 2 centuries. Various fields of education, medical sciences, engineering and technology have text materials available only in English. Moreover, all over India, there is no single language to connect the whole country, and there are several languages spoken throughout the states. English has come as a link language to unite the whole country and also connect to the outside world. Thus, English has gained the status of a universal language. Considering the said facts, English becomes indispensable and unavoidable
इन आवर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ तक कि फर्स्ट टॉपिक भी यहीं पे कंप्लीट होता है कि इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज हम क्यों मानते हैं उसको। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया हुआ है, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू यूज़ इन योर क्लासरूम फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली। हम अपने क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से इंग्लिश समझ सकें। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है, पॉइंट वाइज आंसर लिखा हुआ, आप इसी तरह से एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है एज ए कहानी लिखने से अच्छा। यहाँ पे पहला है कि हम बच्चों को मेमोराइज़ यानी कोई चीज़ याद ना करवाएं, उन्हें समझाने का ट्राई करें। अगर उन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो हम उन्हें ट्रांसलेट करके पहले समझा दें, उसके बाद उन्हें बोले कि हाँ उसको पढ़ो समझो, उसके बाद याद करने को बोले, ताकि वो समझ के कोई भी चीज़ पढ़ें, ना कि सिर्फ रट लें। और किसी भी चीज़ को हमें थोड़ा शॉर्ट पीरियड में, मतलब आधे घंटे का पीरियड है उसी में ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे आज हमने कुछ पढ़ाया तो उसको वापस से कल एक बार रिवाइज़ करवा करके बच्चों को रिमाइंड करवाना चाहिए कि हाँ हमने कल क्या पढ़ा था, जिससे उनको समझने में और आसानी होती है। यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं कि कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन रखना चाहिए हमें। एवरी स्टडी टाइम शुड हैव ए स्पेसिफिक गोल, हमारा एक गोल सेट करके हमें पढ़ना चाहिए कि हाँ हमें आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद हम उसकी रिवीजन करेंगे। इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए बच्चों को। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स नेवर प्रोक्रेस्टिनेट स्टडिंग, मतलब कोई भी जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी चीज़ को टालते नहीं है कल पे। जैसे कि हमें आज कुछ पढ़ना है तो वो हम आज ही पढ़ेंगे, या ऐसे नहीं कि आज नहीं पढ़ पाए ठीक है कल पढ़ लेंगे, ऐसे कल पढ़ के भी परसों पढ़ लेंगे, ऐसे ये काम कोई भी सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं करता है। वो कल पे किया टाला जाने वाला काम कल पे ही रह जाता है, वो कभी होता नहीं है। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, अब बाकी पॉइंट्स रीड कर लें और इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का हमें इसमें इम्पोर्टेंस लिखना है और स्कोप क्या है यहाँ पे इंडिया में वो लिखना है। सबसे फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट डोमेन ऑफ सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पॉलिटिकल रिलेशन में, जुडिशियल इंडस्ट्री में वगैरह सारा चीज़ों में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज ए लिंक लैंग्वेज इंग्लिश को बोला जाता है। लिंक कहने का मतलब होता है वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने का काम करता है, इसीलिए उसे लिंक लैंग्वेज भी बोला जाता है। इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट स्किल, इंग्लिश के यूज़ से हम बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशन, ज़्यादातर जो बुक्स आते हैं ग्रेजुएशन से ऊपर के लेवल के इंग्लिश में ही मिलते हैं हमें, इसलिए इंग्लिश आना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज माना जाता है इंग्लिश को, क्योंकि अलग अलग जगह गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक ट्रांजैक्शंस वगैरह में इंग्लिश का बहुत यूज़ होता है। लैंग्वेज ऑफ मेडिकल एंड कोर्ट, आप कोई भी दवाई लेने जाओगे तो आपको हिंदी में दवाई लिख के तो देगा नहीं, वो तो इंग्लिश में लिख के देगा, इसलिए इंग्लिश आना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आती, फिर भी इंग्लिश आना ज़रूरी है। या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादातर होते हैं, इसलिए इंग्लिश आना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद है हमारा राइट द पोजीशन ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश का क्या पोजीशन है वो हमें लिखना है। तो आर्टिकल्स जितने भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसमें इंग्लिश के बारे में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। While Hindi is the official language of the central government in India, with English as a provisional official sub language, इंग्लिश को हम सब लैंग्वेज के रूप में लेते हैं इंडिया के अंदर। The individual state legislatures can adopt any regional language as the official language of the state. Article 346 of the Indian Constitution recognizes Hindi in Devanagari script as the official language of central government India. The Constitution also allows the कंटिन्यूएशन ऑफ यूज़ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, ऑफिशियल पर्पस के लिए हम इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 346 में। 345 प्रोवाइड करता है, उसमें लिखा हुआ है एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टू एनी लैंग्वेज एडॉप्टेड बाय ए लेजिस्लेचर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। हिंदी एंड इंग्लिश, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। The result was that the Parliament enacted
इसके ऊपर चीज़ें आप खुद से रीड कर ले। इनेक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 दैट प्रोवाइड्स फॉर द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस अलॉन्ग विद द इवन आफ्टर 1965। यहाँ पे इसका पूरा आंसर है, आप रीड कर सकते हो। एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसे पढ़ के समझ भी लेते हो तो आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन करके लिख सकते हो। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड लॉज, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफिशिएंसी एंड अचीवमेंट इन इंग्लिश। ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो आप वो वीडियो जा करके देख लें। असाइनमेंट वाली वीडियो मैंने बताया है कि अचीवमेंट और प्रोफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है। अचीवमेंट मीन्स हाउ वेल स्टूडेंट्स हैव लर्नड और व्हाट वी एक्सपेक्ट देम टू नो। ऑन द अदर हैंड प्रोफिशिएंसी इज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग वेरी वेल। अचीवमेंट से हम समझते हैं कि वो बच्चा कितना जानता है किसी चीज़ के बारे में, या फिर वो टेस्ट में कितना नंबर लाता है, वो एक तरह का अचीवमेंट है उसके लिए। बट प्रोफिशिएंसी का मतलब है वो जानता है किस चीज़ के बारे में, वो तो ठीक है, अब उसका वो यूज़ किस तरह से कर सकता है, काम कितना अच्छे से कर सकता है, वो प्रोफिशिएंसी में आती है। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर कोई ड्राइवर है, यहाँ पर ड्राइवर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी यही एग्जाम्पल लिया हुआ था। ड्राइवर का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो अगर हम उसका कोई टेस्ट लेते हैं जिसमें हम ड्राइविंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें उससे, तो वो टेस्ट में जितने भी मार्क्स वगैरह कुछ भी उसके आएंगे तो वो उसका एक अचीवमेंट टेस्ट होगा। बट अगर हम ये बात करें कि उसे गाड़ी कितनी अच्छी तरह से चलानी आती है, तो वो उसकी प्रोफिशिएंसी है। इस तरह से हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो हम उसको किसी तरह की अचीवमेंट के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, और अगर उसका यूज़ हम आगे के टाइम में कैसे करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, वो इसका यूज़ हुआ, इस तरह से हम उसका प्रोफिशिएंसी देख सकते हैं। यहीं पे हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 की बात करेंगे जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।